ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ جس کی مخدومہ، جس کی خادمہ مریم ہو، وہ مخدومہ کس لیے؟ اب ان کی شان میں میرے امام نے منقبت کہی ہے، ساتھ میں مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ رابضی سمجھتے ہیں ہم اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں۔ او سیاہ کپڑے والوں اور سیاہ دل والوں، تم فاطمہ کی کیا منقبت پڑھو گے؟ 900 سال سے لکھی ہوئی فضائل فاطمہ پر تمہاری کتابیں ایک طرف اور میرے امام کے 2 مصرے ایک طرف۔ میرے امام کہتے ہیں نور بنتے نور زوجے، نور امے نور نور۔ اس لیے کہ حسین پاک کی امی کا ذکر ہو رہا ہے۔ نور بنتے نور زوجے، نور امے نور نور، نور بنتے زوج نورے، نور بنتے نور بنتے نور زوجے، نور امے نور نور، نور بنتے نور زوجے، نور امے نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لما نور کا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور بنتے نور زوجے، نور۔ ہو سکے تو یاد کر لو، مجھے بہت مزہ آتا ہے یہ شعر پڑھنے میں۔ نور بنتے نور زوجے، نور امے نور نور، نور بنتے نور زوجے، نور امے نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا۔ فاطمہ بھی نور ہے، فاطمہ نور ہے، وہ نور کی بیٹی ہے، ان کے ابا بھی نور ہے، اور وہ نور کی بیوی ہے، ان کا شوہر بھی نور ہے۔ جو کہتے ہیں علی نبی کے خاندان کا نہیں، ان کو اعلیٰ حضرت کو ایک بار پھر پڑھنا چاہیے۔ جو کہتے ہیں علی نبی کے خاندان والا نہیں، ان کو ایک بار اعلیٰ حضرت کو پھر پڑھنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے نور فاطمہ الزہرا کو بھی کہا، نور رسول کو بھی کہا، زوجے نور، وہ نور کی بیوی بھی ہے، اور امے نور نور، وہ نور نور کی ماں ہے۔ ایک نور حسن ہے، ایک نور امام حسین ہے۔ ایک لفظ نور ہے 5 مرتبہ بیان کیا، 5 کو الگ الگ معنی میں بیان کیا۔ اگر لوگوں کی تھکن کا احساس نہیں ہوتا تو پوری زندگی میں یہی 2 شعر پڑھ کر اسی پہ تقریریں کرتے رہتا، لیکن لوگ عنوان بدلتے رہتے ہیں، تو ٹھیک ہے ہم بھی بدلتے رہتے ہیں، لیکن بات اتنی ہے کہ سیدہ فاطمہ وہ ہے جس کی خادمہ نکیل پکڑ کر ہے۔ حسین کی امی ہے، کسی کی امی ایسی نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں ضعیف حدیث، میں کہتا ہوں میرے پیارے ضعیف ہی لانا۔ ہم تو بخاری کی قید نہیں لگاتے، ہم عشق کے بندے ہیں، دیوار پہ لکھی ہوئی حدیث کو بھی ہم مان لیا کرتے ہیں۔ ہم کتاب کا نام نہیں دیکھتے، دیوار نہیں دیکھتے، ہم تو قول رسول دیکھتے ہیں۔ ضعیف ہی تو لانا، کسی کی ماں کی شان میں ایسی بات ہو تو لا۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ نکیل مریم کے ہاتھ میں، ہائے ہائے حسین کی امی سواری پر ہوگی، حسین کی امی خادمہ ایسی تو مخدومہ کیسی۔ اور پھر سنو،
जब आएगी ना पुलसरात पे से गुजरेगी, हुसैन पाक की अम्मी है। अल्लाह का मुनादी ऐलान करेगा, महशर वालों गर्दने झुकाओ, आंखों को बंद करो, नबी की बेटी फातिमा पुलसरात से गुजर रही है। क्या शान है। और एक बात आपको बताओ, ये मनकबत एंड पढ़ रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा ने इतना तकवा इख्तियार किया। नबी की बेटी थी लेकिन इतनी मुत्तकी थी कि वो जैसी मुत्तकी का तसव्वुर नहीं हो सकता, जिसके दुपट्टे को चांद और सूरज न देखे, जो विसाल के बाद भी अहले सुन्नत की किताबें मुख्तलिफ रिवायतें हैं, मैं इख्तिलाफ की तरफ नहीं जाता, लेकिन अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी की किताब से ये हवाला पढ़ रहा हूं। अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी लिखते हैं कि सैयदा फातिमा ने विसाल से पहले गुस्ल किया और कहा कि अब कोई मुझे गुस्ल नहीं देना, मेरा ये गुस्ल मेरे लिए काफी है। जिंदगी में जिसने मेरा जिस्म, हालांकि ये रिवायतें भी है कि जनाब अस्मा बिन्त उमैस ने गुस्ल दिया, हम उसका इनकार नहीं करते, लेकिन हम तो फजाइल बयान करने बैठे हैं ना, अभी हम फिक़ी सेमिनार करने थोड़ी बैठे हैं, हम तो फजाइल पढ़ने बैठे, तो फजीलत जहां से मिलेगी वहां बयान होगी, बस अहले सुन्नत के खिलाफ ना हो। तो सैयदा ने, अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी बहुत बड़े मुहद्दिस है, मुफस्सिर है, बड़े फकीह है, कहते हैं कि सैयदा ने गुस्ल किया, कहा कि मेरे विसाल के बाद मुझे कोई गुस्ल न देना ताकि मेरे जिस्म को कोई देख न सके। बाद विसाल रसूल कभी मुस्कुराई नहीं, सिर्फ एक मरतबा मुस्कुराई। जनाब अस्मा से कहा, अस्मा जाने का वक्त करीब है, क्योंकि नबी ने फरमाया था कि जल्दी आके मिलोगी, फिक्र होती है जाऊंगी, यहाँ तो खटिया पे जनाजे लिए जाते हैं, जिस्मों पे नजर पड़ती है, मेरे दुपट्टे को कभी किसी मर्द ने नहीं देखा, जनाजे पे किसी की नजर पड़ जाएगी, बस फिक्र ये है। अस्मा बिन्त उमैस ने कहा, मैं हबशा गई थी तो मैंने देखा कि वहां डोली वाले जनाजे होते हैं, उस पे कपड़ा डाला होता है तो अंदर कोने नजर नहीं आता, अगर कहें तो मैं बना दूं। सैयदा अस्मा बिन्त उमैस ने बनाया। सैयदा ने पहली मर्तबा जनाजा देख के मुस्कुराया। जनाजा देख के लोगों की मुस्कुराहट खत्म हो जाती है, सैयदा ने जनाजा देख के मुस्कुराया। जिसको अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी हया प्यारी थी, जिसको अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी हया प्यारी थी, वो फातिमतुज़ ज़हरा। आज तो कौम की बेटियां मोबाइल पर 2-2 घंटा अजनबी मर्दों से गुफ्तगू करें, कौम की बेटियां सीरियलों की अदाकारा की नक्काली करे। सुनो, मां का दूध सिर्फ बच्चे का पेट नहीं भरता, बल्कि मां का दूध बच्चे के अंदर मां का किरदार मुंतकिल करता है। लोग कहते हैं कोई बेटा ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने नेज़े पे कुरान सुनाया। किसी का बेटा मेंबर पे सुनाता है, किसी का बेटा मेहराब में सुनाता है, किसी का बेटा स्टेज पे सुनाता है, तन्हा फातिमा का बेटा जिसने नेज़े पे कुरान सुनाया। हम कहते हैं जो बच्चे मदरसे और खानका में कुरान पढ़ते हैं वो खानका और मदरसे में कुरान सुनाते हैं, जो माँ की गोद में लोरी के तौर पे कुरान सुनता है वो नेज़े पे कुरान सुनाता है। आका फरमाते मेरी बेटी फातिमा ने इतना तकवा इख्तियार किया, इतना तकवा इख्तियार किया, इतना तकवा इख्तियार किया कि क़यामत तक के फातिमा की औलाद पर अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया में लिखा है कि इंदल्लाह जो सादात हैं उनका अमल चाहे जो हो, वो जहन्नम में नहीं जाएंगे, उन पे जहन्नम हराम है। जो इंदल्लाह सादात है, जो इंदल्लाह, और जो इंदल्लाह नहीं है उन पे कोई तफसीरा नहीं करता। सिर्फ इतना कहता हूं, झूठा सैयद बनने वाले को अल्लाह की लानत, रसूल की लानत, कितना भी नेक होगा जन्नत में नहीं जाएगा, न उसका फर्ज कबूल है न उसका नफल कबूल है। झूठी सियादत के दावेदार नबी की शफात से भी महरूम रहेंगे। तो जो इंदल्लाह सादात है, हुजूर फरमाते उन पर जहन्नम की आग हराम है, चाहे उनके अमल कैसा हो। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने लिखा है जो सैयद बाअमल नहीं होते उनकी हैसियत ऐसी है जैसे कुरान की आयतें मनसूख। जो सैयद बाअमल नहीं होते उनकी हैसियत कैसी है, जैसे कुरान की आयतें, जैसे कुरान में एक आयत है ना, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये आयत का हुक्म मनसूख है। ला इकराह फिद्दीन, ये आयत किताल से इसका हुक्म मनसूख है। लेकिन अब बताओ कोई ये कहे कि चलो इसका हुक्म मनसूख हो गया, इसको कुरान से बाहर कर दें, वो लोग कर सकता है? चलो इसकी बेअदबी करें, इसका इनकार करें, माज़अल्लाह, कर सकता है? तो कुरान की आयत के जो अहकाम मनसूख हो गए
वो चूमे जाएगी, आंखों से लगाई जाएगी, सर पे रखी जाएगी, बेअदबी नहीं की जाएगी, ताना नहीं दी जाएगी, चूमेंगे, आंखों से लगाएंगे, सर पे रखेंगे, मगर उस पर अमल नहीं करेंगे। बस एहतराम उसका ऐसा ही होगा जैसे और आयतों का, लेकिन उस पर अमल नहीं करेंगे। तो फरमाते जैसे कुरान की आयतें मनसूख का एहतराम फर्ज है, वैसे ही बेअमल सैयदों का एहतराम भी फर्ज है। जैसे उनको चूमा जाता है, आंखों से लगाया जाता है, सर पे रखा जाता है, मगर अमल नहीं किया जाता, ऐसे ही बेअमल सैयदों को चूमा जाएगा, एहतराम किया जाएगा, आंखों से लगाया जाएगा, मगर उनकी इत्तिबा और उनकी नकल नहीं की जाएगी कि चलो बापू दाढ़ी मुंडा रहे तो हम भी मुंडाना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होगा। चूमेंगे, एहतराम करेंगे, लेकिन उनकी नकल नहीं करेंगे। जैसे कुरान की आयतें मनसूख। आज लोग तानाजनी करते हैं, आपको तानाजनी करने का हक क्या है मेरे अजीज? जब अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि फातिमा की औलाद पर जहन्नम की आग हराम है, और ये तन्हा फातिमतुज़ ज़हरा है, तन्हा फातिमतुज़ ज़हरा है, जिसकी औलाद में इतने वली हुए कि इतने वली किसी की औलाद में नहीं। ये फातिमतुज़ ज़हरा के तक़वे की बरकत मिली है। इसीलिए और लोग बरसों मेहनत करके जहां नहीं पहुंच पाते, फातिमा की औलाद थोड़ी सी मेहनत करके वहां पहुंच जाए।